Very fine, cheerful morning to everyone. Today it is a special day. Special in the sense that every Thursday we used to celebrate the day as a Sanskrit day, and whichever class is having the puja turn, they come here and they deliver their presentation in Sanskrit only. Because Sanskrit is the language which helps the speaking skills of an individual, and because it is one of the oldest language, it has got all the twists and turns of the tongue which helps in communicating in every language. All the alphabets, all the characters of any of the language you can easily speak if you are fluent in Sanskrit. सुप्रभातम। मम नाम गजेन्द्र अस्ति। अद्य सुविचार। यथाचितं तथा वाचो यथा वाचस्ता क्रिया। अहम पुनः वदामि, यथाचितं तथा वाचो यथा वाचस्ता क्रिया। धन्यवाद।
सुप्रभातं, मम नाम परीक्षित अस्ति। अद्य संस्कृतं वार्ताः श्रूयताम्। अन्तर्राष्ट्रीयवार्ता। रणिल् विक्रमसिंहे संसद्मध्ये श्रीलङ्कादेशस्य राष्ट्रपति निर्वाचितवान्। अन्तिमद्वयं यावत् यूके पीएम भवितुं दौडं कुर्वन्तु ऋषि सुनक लिज ट्रस्ट। राष्ट्रीयवार्ता। अद्य भारतस्य 15 राष्ट्रपति प्राप्स्यति। प्रख्यात गायक भूपेंद्र सिंह पंचतत्त्वे विलीनः। क्रीडावार्ताः। बर्मिंघम नगरे 8 दिनानन्तरं राष्ट्रमण्डल क्रीडायाः आयोजनम्। अद्यतनीय मौसम स्थिति। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री, अधिकतम तापमान 29 डिग्री। सुप्रभातं, मम नाम हार्वे अस्ति। अहं श्लोकः पठामि। शशिना शोभते रात्रिः, सूर्येण शोभते, सत्येन शोभते वाणी, सदाचारेण जीवनम। अर्थ, रात चंद्रमा से सुशोभित होती है, सृष्टि सूर्य से शोभित होती है, वाणी सत्य से सुशोभित होती है और जीवन सदाचार से। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। अर्थ, उद्यम से ही कार्य सिद्ध होते हैं, मनोरथ से नहीं। सोए हुए शेर के मुंह में पशु नहीं प्रवेश करते हैं, अर्थात उसे भी परिश्रम करना पड़ता है। धन्यवादः। सुदिनमस्तु। सुप्रभातं, मम नाम अनिरुद्ध अस्ति। अहं कवि कालिदासस्य विषये वदामि। महाकविः कालिदासः भारतस्य एकः श्रेष्ठः कविः अस्ति। कालिदासः प्राचीनकालिकः राष्ट्रकविः अस्ति। सः कविशिरोमणिः, कविकुलगुरुः। कालिदासः कविश्रेष्ठः इति उच्यते। तेषु द्वे महाकाव्ये रघुवंशं, कुमारसम्भवं च सन्ति। त्रीणि नाटकानि अभिज्ञा, शाकुन्तलं, विक्रमोर्वशीयं, मालविकाग्निमित्रं च सन्ति। द्वयं खण्डकाव्ये ऋतुसंहार, मेघदूतं च सन्ति। कालिदासस्य काव्यानां प्रमुखं वैशिष्ट्यम् उपमासौन्दर्यम् एवम् अस्ति। तत्र कृत्रिमता, क्लिष्टता च किञ्चित् मात्रमपि नास्ति। विश्वसाहित्ये शेक्स्पियरेण कविना सह समानता धारयति। अयं महाकविः संस्कृतसाहित्ये अद्वितीयं स्थानं धारयति। धन्यवादः। Big day in the sense that every year an organization which is dedicated to developing, strengthening the relationship between a teacher and the taught, the pupil, and that is why just after the Guru Purnima, we used to celebrate the Guru Vandan Chhatra Abhinandan event, which is a very special event of the Bharat Vikas Parishad. And today we are very fortunate that Bharat Vikas Parishad Mewad has selected our school to felicitate few of the teachers and the students so that they will be motivated, and also it gives a message to the others that yes, we can also come one day here and we can also get that felicitations. For that you need to do something. As the Shraddha Acharya sir always used to say, देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें. These lines were quoted by Swami Vivekanand. And you know, Alok, A means come. You have to come here to get the knowledge. Lo means what you have to know? That you have to take the knowledge. And कर्म के लिए बाहर जाओ. Then you have to move out and you have to serve the society. And that is the definition of Alok. And on the same base, on the same idea, same concept, same philosophy, Bharat Vikas Parishad is there. Today in this morning assembly, I welcome the representatives of Bharat Vikas Parishad Mewad. I would like to request Jaipal sir, please come up and felicitate. We have got amongst us the president
of Bharat Vikas Parishad Mewad, Prashant Ji Vyas sir. Just sitting next to him, Harish Ji Joshi sir, Narendra Singh Ji Sisodia Sahab, and the treasurer of Bharat Vikas Parishad Mewad, Tripathi Ji. I welcome all of them on behalf of Alok Senior Secondary School. Now, for the details of this program and the Bharat Vikas Parishad, I would like to request the President Bharat Vikas Parishad Mewad Prashant Ji to please come up on the stage and address us by your motivating words, and do tell us about what Bharat Vikas Parishad is, what are its objective, and why this Guru Vandan Chhatra Abhinandan event has taken up by the Bharat Vikas Parishad. Honorable Prashant sir. आलोक संस्थान और भारत विकास परिषद, आलोक संस्थान एक ऐसी जगह है बच्चों, टीचर्स की उसको भारत विकास परिषद के इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारी भी शुरुआत जो है आलोक संस्थान से ही हुई है, और जिस जगह पे हम लोग आज हैं उसमें आलोक संस्थान का बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले तो सभी को आपको सादर वंदे, और एक बार जोरदार अपनी आवाज़ के अंदर ये दर्शाएं कि हम महर्षि वेद व्यास सभागार में बैठे हैं। वंदे वंदे वंदे। बहुत बढ़िया। गुरुवार के दिन आज शशांक जी ने जैसे बताया कि हमारे यहाँ संस्कृत के अंदर पाठ होता है और बहुत सुंदर लगता है। यही एक ऐसा विद्यालय और एक संस्थान है जो आज 40 नहीं 1967 से जो है भारतीय संस्कृति और मूल्यों पर काम कर रहा है और धरातल पे काम कर रहा है। कई चीज़ें ऐसी होती है कि आप देखते तो हैं, कई स्कूल हैं जो दिल्ली के अंदर है जिनका नाम तो संस्कृति विद्यालय, संस्कृति भारती, बहुत कुछ है, खुद दिल्ली के लोगों ने आके बताया। लेकिन जब उन्होंने आलोक संस्थान में आके प्रदीप सर से मिले, शशांक जी से मिले, आपके यहाँ के सारे दीवारों पर लिखे हुए श्लोक को देखा, तो उन्होंने एडमिट किया है कि संस्कृति और संस्कार के रूप में जो काम करने वाला संस्थान है वो तो आपका है, बाहर तो बहुत सारी चीज़ें हैं दिखावे के लिए होती है। तो आप बहुत गौरवान्वित अपने आप को महसूस कीजिए कि आप ऐसे संस्थान के साथ हैं जो संस्थान समाज और संस्कृति को नए नए नवाचार दे रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आपने नववर्ष समारोह समिति जो है, जब से आप संस्थान से जुड़े हों या उदयपुर के वासी हों, यहीं से आचार्य जी ने जो शुरुआत करी थी, हम भी छोटे थे उदयपुर में, आई एम ऑल्सो बॉर्न एट बीकानेर पर बॉट एट उदयपुर। तो जब से यहाँ छोटे थे तो ये जानते थे कि दीपावली के जैसा माहौल होता है नववर्ष समारोह समिति में, और उस वर्ष या उस अवसर पर दूध तुलाई पे आतिशबाजी होती है, राजस्थान पत्रिका की भी होती थी और नववर्ष समारोह समिति की तरफ से भी होती थी। अप्रत्यक्ष रूप से हम जुड़े हुए थे, लेकिन जब प्रत्यक्ष रूप से आज से 7-8 साल पहले जब हम आलोक संस्थान और भारत विकास परिषद से जुड़े तो मालूम हुआ कि वास्तव में आचार्य जी का विजन कितना बड़ा था और वो उनकी सोच कितनी बड़ी थी। आज देश दुनिया उस सोच को अपना रही है। तो आप जो चीज़ आलोक संस्थान के साथ अनुभव कर रहे हैं वो आप देश दुनिया में फैलाएं। भारत विकास परिषद 1963 में जब स्थापित हुई थी इंडो चाइना वॉर के वक्त, उस वक्त एक समाज का एलिट ग्रुप था जो अपने कमाने धमाने में ही व्यस्त था, और उस ग्रुप को, उस संभ्रांत ग्रुप को यह परवाह नहीं थी कि हमारे फौजी और हमारे जो इंडियन सिटीजन हैं वो किस तरह से इस क्राइसिस के अंदर अपना मैनेजमेंट कर रहे हैं, चाहे वो दवाई का हो, कपड़े का हो, पैसे का हो। तो उस वक्त जो स्थापना हुई थी डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की और लक्ष्मणबल सिंह की और इस तरह से 20 लोगों की मिलके, तो वो आज बहलते फैलते 1000 शाखाओं और इतने करीबन 1.5 लाख सदस्यों से मिलकर देश दुनिया के अंदर फैल चुका है। आप में से ही कुछ बच्चे निकलेंगे IAS ऑफिसर बनेंगे, सेना में जाएंगे, आप में से ही बच्चे निकलेंगे जो स्कूल के प्रिंसिपल की पोस्ट लेंगे। भारत विकास परिषद की गतिविधि को मैं सिर्फ दो लाइन में समअप करूंगा कि हम लोग इंडियन सिटीजन, स्पेशली इंडियन सिटीजन में बात करूं तो बच्चों को उसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। युवाओं पे काम करके उनको फ्यूचर का एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनाना चाह रहे हैं। हर पैरामीटर है, स्वस्थ, आप हेल्दी हो, समर्थ भारत हो और संस्कारित भारत हो। अगर 3 चीज़ों के पैरामीटर पे काम हो रहा है तो हमारा इंडियन सिटीजन, हमारा युवा जो है वो स्ट्रॉन्ग है। सबसे यंगेस्ट नेशन है
आपका सब 45% जो आपका पॉपुलेशन है वो यंगेस्ट बिलो 30 के बिलो उन लोगों का है, तो आप बहुत बड़ी सुपर पावर है अपने आप में। हर दुनिया के अंदर हर 9वां 10वां व्यक्ति जो है भारतीय है। अपनी पावर को यूज़ करें, इस पॉपुलेशन स्ट्रेंथ को यूज़ करें। इसके लिए नहीं कि एमएनसी आके और आपको बाजार समझ के आपको एक्सप्लॉइट करे, आप अपनी पावर को यूज़ करें फैलने के अंदर और संस्कार और संस्कृति को फैलाने के अंदर। मैं अपनी बात को तो यहाँ समाप्त करूँगा ही करूँगा, पर इतना जरूर कहूँगा कि इस बार जो जैसे कि मिशन होता है, तो भारत विकास परिषद मेवाड़ जिस शाखा का मैं हेड करता हूँ, उसका मिशन है कि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे। और हमारा ये 2 या 3 साल के अंदर ये सपना भी है कि हम एक स्पोर्ट्स एकेडमी उदयपुर में अगर मान लो खोल सकें, तो एक फ्यूचरिस्टिक प्लान है। और उसकी तैयारियों में हमने एक शुरुआत करी है, जिसमें कि हमने गोवर्धन सागर के अंदर मैराथन करी थी, और आने वाले टाइम के अंदर भी हम स्विमिंग से लगाकर एक कंप्लीट वीक जो होगा एक्टिविटी का स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर करेंगे। तो आप लोग स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर बढ़ चढ़कर पार्ट लें। और आपके प्रिंसिपल, आप यू आर वेरी ब्लेस्ड कि इस तरह के आपके डायनेमिक प्रिंसिपल हैं जो इस तरह की एक्टिविटी में खुद बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हैं। तो अगर मान लो आपको लीडर इस तरह का मिला हुआ है और हम लोग भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो मेरा ये सपना है या आपका ये सपना है, यानी हमारा ये सपना होना चाहिए कि एथलेटिक्स के अंदर एक नीरज चोपड़ा उदयपुर से भी निकले। मैं शपथ लेता हूं कि मैं सदा अपने माता पिता, शिक्षकों, नारी जाति और बड़ों का सम्मान करूंगा। अपनी राष्ट्रीय संस्कृति, रीति रिवाज, नैतिक मूल्यों और सामाजिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मैं अपने कर्तव्य और दायित्वों को भलीभांति निभाऊंगा। मैं स्वयं भी और दूसरों को भी सर्वोत्तम बनने की प्रेरणा दूंगा।